लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग ये अचानक नहीं है। 2014 13 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन। ছোট্ট একটি পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, কিন্তু ত্রিপুরার রাজ্য রাজনীতি কিন্তু বর্তমানে সরগরম। যে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যথেষ্ট তাৎপর্য রাখে পাহাড়ের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। পাহাড়ের রাজনীতিটা যতটা শক্ত করা যাবে ততটাই বিধানসভায় আসন বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ রাজ্যে যত সরকারি গঠন হোক না কেন, পাহাড়ের রাজনীতি পাহাড় তারপর সমতল, এমনটাই কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় আছে রাজ্যে। হোক বিজেপি, হোক সিপিআইএম, হোক ত্রিপুরা মথা, প্রত্যেকটি দল কিন্তু আগে পাহাড়ে কাজ করেন, তারপর সমতলে আছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে রাজ্যের রাজনীতিতে পাহাড়ের রাজনীতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এবার আমরা পাহাড়ে দেখতে পেয়েছি ত্রিপুরা মথা, আইপিএফটি এবং বিজেপির জোট সরকারকে। কিছুদিন আগেও ত্রিপুরা মথা থেকে একটি বিশাল জনসভা করা হয় ত্রিপুরাল্যান্ডকে সামনে রেখে, এবং তিনি সেই জনসভায় বলেছেন তিনি সমতলেও নাকি বিধানসভায় আসন দেবেন। অর্থাৎ প্রথম তিনি তার পাহাড়কে মজবুত করলেন, তারপর সমতলে আসলেন। তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রাখছে পাহাড়ের রাজনীতি। এবার যেহেতু মাত্র 1 বছর মাত্র বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক 1 বছর আগে পাহাড়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল পাতালকন্যা অর্থাৎ টিপিএফ, সেই টিপিএফ এর যিনি সুপ্রিমো পাতালকন্যা, এবার তারা যোগদান করলেন বিজেপিতে। এই বিজেপিতে যোগদান করাকে কেন্দ্র করে অনেকটাই কিন্তু শক্তিশালী এবার হয়ে উঠছে বর্তমান শাসক দল। এবং আজকে তিনি বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্র ভবনের সামনে। এই যোগদান সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই যোগদান সভায় যিনি সুপ্রিমো রয়েছেন পাতালকন্যা, তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উন্নয়নমূলক কাজকে দেখি তিনি আজ বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এবং তিনি যখন তার সভা শেষ করে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, যখন একটি সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন আপনাদের কি ত্রিপুরাল্যান্ড চাই বা আপনাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের চাওয়া পাওয়া কিছু আছে কিনা, তখন তিনি স্পষ্ট বক্তব্যে বলে দিলেন ত্রিপুরা মথা আমাদের চায় না, আমাদের ত্রিপুরা মথার আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের কোনো দরকার নেই, আমরা এনআরসির জন্য আজ বিজেপিতে যোগদান করেছি। গোটা ভারতে এনআরসি চালু হচ্ছে এবং সেই এনআরসিকে কেন্দ্র করে আমরা বিজেপিতে যোগদান, আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো দেওয়া পাওয়া নেই, কথাটি তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই বিজেপিতে যোগদান এবং এনআরসিকে কেন্দ্র করে যোগদান, অর্থাৎ ত্রিপুরাল্যান্ডের কোনো বিষয়ে তাদের কোনো লেনদেন নেই। এবং যে ত্রিপুরা মথা, টিপিএফ এছাড়া আইপিএফটি, প্রত্যেকটি দল যখন তার পাহাড়ের রাজনীতি করছে, ঠিক সেই সময় আইপিএফটি এবং যে বিজেপির সাথে এবার যোগ হয়ে যায় টিপিএফ অর্থাৎ পাতালকন্যা। এবং পুরো বিষয়টাই কিন্তু এবার অনেকটাই রাজ্য রাজনীতিতে সরগরম, কেননা যথেষ্ট পার্সেন্টেজ রয়েছে পাতালকন্যার। এবং বর্তমান শাসক দলকে যখন পাতালকন্যার যখন শাসক দলে যোগদান করা, শাসক দলের পাল্লাটা অনেকটাই ভারী হয়ে যায়। অর্থাৎ সামনের বিধানসভা নির্বাচনে যে শাসক দলের যে পাল্লা সেটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে। আজকের জনসভায় তাই স্পষ্ট বোঝা গেছে। এবং তিনি আমি শোনাবো আপনাদের সেই বক্তব্যটা। তিনি বলেছেন উনার ত্রিপুরাল্যান্ড দরকার নেই, উনি এনআরসি কে কেন্দ্র করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। আমরা শুনবো তিনি কি বলেছেন। नहीं है 2014 13 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग
सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया। ये त्रिपुरा का जो शोषण रीति है इसको हटाने के लिए, लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूट से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ का तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। मैम বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज की ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छूटता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी का ये डिमांड गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ दिन पहले आपको हमने तीपरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, तो फिर अचानक ये तीपरा मोथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा तीपरा मोथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरालैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का बात त्रिपुरा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ। मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और त्रिपुरा सा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। त्रिपुरा मोथा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं पीछे से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर काम करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না, এই বক্তব্যটা আপনি मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप भी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहती है कब त्रिपुरा से गुजरा। তো इसका উপর में मैंने क्या कहना का बात, যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন একটা খবর এসেছিল যে সিংহায়ে আপনাদের একজন কর্মীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, शुदा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करते हैं और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये छोटा काम में हम लोग एक साथ काम करना चाहिए और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। छोटा ढोल बांधकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপরা মোথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একবারে জড়িয়ে পড়েছে, তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে, পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসতে? নট অনলি পাহাড় এবং সমতল সব কিছু বিজেপি का ফিল होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। সরকারের 4 বছরে কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? বিজেপি সরকারের কোন বাইপিপিশন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज की जितना तो क्या है, मैंने वाकिबहाल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है,
और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉकरोच का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्ज बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, नहीं चाहती मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा, और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस का इश्यू है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देख कर ही बीजेपी का जो विजन है मिशन है इसको देख कर ही मैंने जो करना है करेगा। ये अचानक नहीं है, 2013 जून से DPF फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया, ये त्रिपुरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए। लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन NGO का तरफ से, इसलिए आज ये NGO का तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज तक नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। मैम বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज की ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छूटता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ इसका अंदर में सबसे बिप्लब जी ने ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ बिप्लब जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी का डिमांड? गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ दिनों पहले आपको हमने त्रिपुरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, Yes. फिर अचानक ये त्रिपुरा मोथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। TPF एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, TPF कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया और TPF के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा त्रिपुरा मोथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का त्रिपुरा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ, मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और त्रिपुरा से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। त्रिपुरा मोथा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसी से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर काम करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না? এই বক্তব্যটা আপনি मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो
ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप भी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद नहीं कह रही है, वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहती है कब त्रिपुरा से गुजरा। তো इसका ऊपर में मैंने क्या कहना का बात যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা খবর এসেছিল যে সিধায়ে আপনাদের একজন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो, मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, शुदा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करते हैं और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये शुदा काम में हम लोग एक साथ काम करना सही और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। छोटा ढोल बांधकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপ্রা মথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একবারে জড়িয়ে পড়েছে তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসতে? নট অনলি পাহাড় এবং সমতল সব কিছু বিজেপি का ফিল होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। ম্যাডাম, সরকারের 4 বছরে কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? सब বিজেপি সরকারের কোন বাইপ্রিপেশন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज की जितना तो क्या है, मैंने वाकिबहाल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरा एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा विवेक नाम से किया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन किया है और कॉकरोच का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्स्ट बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, मतलब मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है, मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा, और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस का इशू है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देख कर ही बीजेपी का जो विजन है मिशन है इसको देख कर ही मैंने जो करना है करेगा। ये अचानक नहीं है, 2013 जून से TPA फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया, ये त्रिपुरा का जो शोषण रीति है इसको हटाने के लिए। लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ की तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज तक नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। ম্যাম, আপনি বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज की ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छूटता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ
इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी का ये डिमांड गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल है। ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ दिन पहले ম্যাডাম आपको আপনার যে हमने বক্তব্যটা ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী तीपरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, तो Yes. फिर अचानक ये बीजेपी टीपरा मोथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया। और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है, लेकिन आज मैंने देखा टीपरा मोथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा। एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर टीपरालैंड और जो सिस्टम, जो एक्टिविटीज वो टीपरा का जनजाति का बात टीपरासा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ। मैं टीपरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और टीपरासा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। टीपरा मोथा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसी से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर काम करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না, এই বক্তব্যটা আপনি তুলে নেবেন? मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है। ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, अभी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहती है कब त्रिपुरा से गुजरा। তো इसका ऊपर में मैंने क्या कहना का बात है। যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা খবর এসেছিল যে সিধায় আপনাদের একজন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, छोटा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करते हैं और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये छोटा काम में हम लोग एक साथ काम करना चाहिए और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। छोटा ढोल बांधकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপরা মোথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একবারে জড়িয়ে পড়েছে তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে? নট অনলি পাহাড় এবং সমতল সব কিছু বিজেপি का ফিল होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। ম্যাডাম সরকারের 4 বছরে কোন কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? सब বিজেপি সরকারের কোন বাইপিপিএস কোন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज की जितना तो क्या है, मैंने वाकई बहल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉकबोरक का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्स्ट बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है, मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और
पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला है एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा, और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस कैसी है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देखकर ही बीजेपी का जो विजन है, मिशन है, इसको देखकर ही मैंने जो करना है करेगा। ये आसानक नहीं है। 2013 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया। ये त्रिपुरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए, लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ का तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। मैम বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छुपता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी का ये डिमांड गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ दिन তাহলে पहले ম্যাডাম आपको আপনার যে हमने বক্তব্যটা ছিল যে एक पूछो। तीपरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, तो Yes. फिर अचानक ये बीजेपी टीपरा मोठा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया, और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा त्रिपुरा मोठा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का व त्रिपुरा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ, मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और त्रिपुरा से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। त्रिपुरा मोठा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसी से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर कार्य करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না, এই বক্তব্যটা আপনি তুলে নেবেন? मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, अभी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहती है कब त्रिपुरा से गुजरा। তো इसका ऊपर में मैंने क्या कहना का बात है। যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা খবর এসেছিল যে সিংহায়ে আপনাদের একজন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, शुदा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करते हैं और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये शुदा काम में हम लोग एक साथ काम करना चाहिए और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। शुदा ढोल बनकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है।
तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो हाँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপ্রা মথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একবারে জড়িয়ে পড়েছে তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে? নট অনলি পাহাড়, পাহাড় এবং সমতল সব কিছু বিজেপি का ফিল होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। ম্যাডাম, সরকারের 4 বছরে কোন কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? सब বিজেপি সরকারের কোন বাইপ্রিপেশন কোন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज भी जितना तो क्या है, मैंने वाकिबहाल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरा एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉर्पोरेट का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्स्ट बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है, मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा, और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस का सीन है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देखकर ही बीजेपी का जो विजन है मिशन है इसको देखकर ही मैंने जो करना है करेगा। ये अचानक नहीं है, 2013 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया, ये त्रिपुरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए। लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूट से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ की तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज तक नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। ম্যাম, আপনি বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छुपता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, इसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मैंने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सर मैम, एनआरसी जो है, एनआरसी का डिमांड क्या गवर्नमेंट ने आपका मान लिया है या आप एनआरसी का ये डिमांड गवर्नमेंट का डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का टेक करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी का काम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम, कुछ दिन তাহলে पहले ম্যাডাম आपको আপনার যে हमने বক্তব্যটা ছিল যে एक पूछो। तिप्रा मोथा के साथ भी आपको देखा था, तो Yes. फिर अचानक ये बीजेपी त्रिपुरा मोठा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी बूथ खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया
और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा तिपरा मुठू को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर तिपरालैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो तिपरा का जनजाति का बात तिपरासा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तिपरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और तिपरासा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। तिपरा मुठा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसी से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर कार्य करेगा। ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশে এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন না এই বক্তব্যটা আপনি কি मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, अभी तिपरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद नहीं कह रही है, वो भी बांग्लादेश रायट में तिपरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहती है कब तिपरा से गुजरा। तो इसका ऊपर में मैंने क्या कहना का बात, যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা খবর এসেছিল যে সিংহায়ে আপনাদের একজন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? देखो मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, छोटा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करते हैं और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये छोटा काम में हम लोग एक साथ काम करना सही और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। छोटा ढोल बांधकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে তিপরা মথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একবারে জড়িয়ে পড়েছে তখন তো পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার আপনি কি মনে করছেন যে বিজেপি এবং পিপলস ফ্রন্ট ওরা যদি একসাথে চলে আসে পাহাড়কে কতটা ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে? नॉट ओनली पहाड़ एवं समतल सब किसो बीजेपी का फील होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। ম্যাডাম সরকারের 4 বছরে কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? सब বিজেপি সরকারের কোন বাইপিপিশন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज भी जितना तो क्या है, मैंने वाकई बहल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन किया है और कॉकरोच का नाम को आगे बढ़ने के लिए तिपरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्स्ट बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और क्या तिपरालैंड का या ग्रेटर तिपरालैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले ग्रेटर तिपरालैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर तिपरालैंड को नहीं चाहती है, मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर तिपरालैंड नहीं है, मेरा डिमांड ये तिपरा में बहुत दिनों से इलीगल इमाइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद तिपरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है, मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से तिपरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस केसिंग है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देखकर ही बीजेपी का जो विजन है मिशन है इसको देखकर ही मैंने जो करना है करेगा। ये अचानक नहीं है, 2013 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया, ये तिपरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए। लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूट से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ की तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये
आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। मैम, আপনি বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी सुरता है और सुनता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत प्राउड है।